this is Arpita here, and you are listening to the Brown Girl Rants. Welcome back to the podcast. I hope you all are fine. I hope you all are doing well. It's 8 a.m. in the morning, and I can't believe right now because this is the first time I'm recording an episode this early in the morning. Because, as you all might know, I have a really messed up sleeping schedule and I mostly wake up at 10 or 11. I don't have a messed up. I am a morning person. I still believe I am a morning person because I feel good. But the thing is that my sleeping schedule have sleeping schedule. My sleeping schedule is messed up. I don't know. But I know why because I have to work at night. Lekin I think I could get it a bit better if I would start working a bit earlier and finish working a bit earlier. लेकिन I don't क्योंकि अब routine बन चुकी है and I don't know how. लेकिन obviously I woke up at like 6:30 today and I just woke up early to record the podcast क्योंकि last night I mostly record the podcast episode at Tuesday night, which is very stupid. क्योंकि I recorded at Tuesday night, then I edited completely and then I uploaded उसी टाइम में, which is so stupid. Like मेरे पास पूरा हफ्ता होता है और मैं ट्यूसडे को जाके रिकॉर्ड करती हूँ. लेकिन खैर इस बार I had a reason. Somehow I always have to go out and do something on Tuesday. ठीक है. तो ऑन मंडे आई पोस्टेड दिस पॉल क्योंकि मेरे पास 3 एपिसोड की वो दिमाग में चल रहा था कि कौन सी बनाऊं और मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो इफ़ यू ऑल फॉलो मी इंस्टाग्राम तो आई पोस्टेड दिस पोल एंड आस्क्ड यू गाइस टू वोट. मैंने 3 टॉपिक्स प्रपोज किए थे और एवरीवन मेजोरिटी ऑफ द पीपल वोटेड ऑन द टॉपिक व्हिच आई एम मेकिंग टुडे. तो उसके रिजल्ट मुझे मतलब कि ऑब्वियसली कल दोपहर में पता लगे हैं और आई वॉज आउट दैट टाइम तो मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी. ऑब्वियसली आई शुड हैव पोस्टेड द स्टोरी अ डे अर्लियर. लेकिन मुझे वो आइडिया ही मंडे को आया बैठ के. तो खैर इट्स ऑल माई फॉल्ट. लेकिन इन द अदर न्यूज आई know the other 2 topics that I'm gonna make an episode on for the next 2 weeks. So I hope that serves as a motivation for me to record the episode earlier. लेकिन खैर I didn't क्योंकि ट्यूज तो फिर मैं इतनी थकी हुई थी कल रात को कि I didn't wanted to record. और फिर मैंने सोचा कि लेकिन I always upload it at late night at Wednesday's night. जब Wednesday start होता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ. तो I was kinda like confused, not confused, लेकिन मुझे हो रहा था कि ओ why should I be uploading it on Wednesday तो और क्योंकि मैं उठती भी लेट हूँ तो मैं कब रिकॉर्ड करूँगी कब अपलोड करूँगी और मॉर्निंग्स आर बिजी. तो फिर तो फिर मैंने सोचा कि ओ आई वेक अप अर्ली and then I woke up early and now I'm recording this podcast and these are the first words I am speaking as I woke up. तो इस वजह से माई वॉइस मे बी नॉट बी द बेस्ट राइट नाउ. माई वॉइस इज नेवर द बेस्ट लेकिन माई डायलॉग डिलीवरी might not be the best right now क्योंकि this is the first time I'm speaking after waking up. और I hope you all understand what that means क्योंकि obviously you have to get words out of your mouth. लेकिन I woke up at 6:30 तो I gave myself time to process. और उसके बाद फिर मैं अब आई हूँ रिकॉर्ड करने तो आई होप इट वर्क्स वेल. लेकिन आई एम वेरी ग्लैड एक्चुअली कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट एंड टू लिसन अ पॉडकास्ट. ठीक है. तो आई होप के this turns out well and I hope this मतलब के serves as a new routine so that I can wake up at this time, not at this time लेकिन at least at 8 every single day क्योंकि my family also wakes up late and sleeps late. तो मुझे लगता है कि this is मतलब कि at this time I can give time to myself and क्योंकि my ज़हन इज़ फ्रेश तो फिर मैं उस टाइम आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह सब कुछ कर सकती हूँ. और स्पेशली विद पॉडकास्ट और विद वर्क और एनीथिंग तो इस टाइम मतलब कि यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव
if I try to sleep early and wake up early. So let's see. I hope this helps. लेकिन as I speak, the condition of Pakistan is not very good क्योंकि our ex-prime minister got arrested yesterday और मतलब कि it's very chaotic. You all know मतलब कि it's that bad कि I almost didn't felt appropriate to record an episode today. लेकिन फिर I felt कि um it's fine, like I have to मतलब I felt it's fine और ऊपर से Twitter is not working और more Facebook is not working, internet mobile data is not working, तो a lot of things are not working तो मुझे लेकिन I didn't want it to skip तो obviously I think कि if anyone doesn't want to listen to the episode they can listen to it later on लेकिन मुझे लगा कि no Ravia you should upload क्योंकि I skipped one Wednesday in Ramzan तो I didn't want it to skip another week लेकिन I would लेकिन I didn't felt appropriate to upload it क्योंकि इतना कुछ हो रहा है इंटरनेट पे और मतलब कि you see so much लेकिन then I felt कि oh if someone doesn't want to listen to it they can always listen to it later on secondly इस वक्त तक एपिसोड अपलोड हो चुकी होती है और आई डोंट नो कि इस इतना अर्ली कोई सुनता है कि नहीं और मैं आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड मैंने कहा पता नहीं क्या होगा लेकिन देन आई टोल्ड माई सेल्फ रवि नो वन केयर्स मतलब कि नो वन वुड इवन नोटिस इफ द एपिसोड इज लेट बाय 6 hours and that was a good relief के oh no one cares खैर I would not talk a lot even though I have talked 6 minutes एवी फजूल का लेकिन खैर we'll jump right into the topic. I am trying to make my introductions shorter लेकिन I felt कि maybe this information is a bit useful. I don't know if it's useful or not. Like, and I felt कि no, I need to tell people that, or I could not be telling people that at the end of the episode. Or obviously, this whole thing charged me. So now, um, I am speaking well. My dialogue delivery, dialogue. I don't know what I would call it. क्योंकि dialogue delivery to actors की होती है लेकिन खैर वॉट एवर इट इज मैं अब सही बोल रही हूँ तो अच्छा है कि थोड़ा वार्म अप हो गया है और today's episode is about apologizing. So if you're someone who sucks at apologizing, maybe, or maybe you apologize too much, or maybe you other people don't apologize to you, but they hurt you or they do something that hurts you and they don't apologize to you. So this episode is for you. Okay, how you can be better with it or how you can maybe do it a bit less or how can you tell people कि, oh this shit hurted me to come and apologize to me so this episode is for you so stay tuned and we'll take a short break and come back so the topic today is when not to apologize. And I told you all that I posted a poll with two other episode ideas and you all voted for it. No, there was another episode that had a neck to neck another topic that had a neck to neck competition with this one. It was about study productivity. Like in this one won't. So we are making an episode on this or next week we'll make an episode on that. लेकिन आई थिंक कि if you're listening to it तो there's three scenario either you suck at apologizing and you can't apologize or I know a lot of people who just can't apologize और इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है they're always sometimes they do regret or they are in guilt but they just cannot apologize second are the people who don't apologize and don't realize not people मतलब there are some people I have seen क्योंकि I'm talking about you we are not talking about other people we are talking about ourselves right now there are some people I have seen who don't feel guilt and don't apologize and they're like oh I don't they take pride in it so there's this situation the third situation is that कि maybe you apologize too much कि हर चीज के बाद you're like sorry then talking about other people is that people don't apologize to you like you are apologizing or you are accepting your mistakes but other person does not care about it maybe they care about you apologizing but they don't care about apologizing to you too
of what hurted you. Or there's another scenario the other person is apologizing to you too much, but I don't think that's a problem. I don't think anyone would have a problem with that. Obviously you can always tell that person ke, oh, don't apologize. Yeah, you can be like, oh my god, it's okay. So I don't think that this is a problem the other person is apologizing to you too much. So there's four scenario. Basically there's three scenario. मतलब कि there is very less people who wouldn't realize that it's not their mistake. But we'll talk about that. We'll talk about it all. We'll talk about different scenarios and different relationship, or whether you should apologize in that situation or in that relationship or not. I think for the past 2 years, I have learned a lot about humans and how to interact with humans, how to understand humans. क्योंकि it might be the reason कि I just entered into adulthood or and in early 20s, or I think that you understand a lot of things, you become more considerate when you enter in your early 20s. क्योंकि in teenage you're like celebrating and you are just thinking about yourself, which is not a bad thing. But as you get into your 20s, you just start dealing with a lot of, मतलब obviously you deal with humans too पहले, लेकिन you start being a bit more considerate about other people's emotion, and you get to know more about, oh, how to deal with other people, how to deal with this and how to deal with that, how to deal with situations different, which you might not care about when you are in teenage, or you might not even go through those situations, or you might not go through, मतलब कि, or you might not care about it. क्योंकि when you get into your early 20s, तो your relationship with everyone gets very solid, or you need to keep that. In teenage with friendships, you're sometimes on and off with your friends. With parents, sometimes you don't have that great of a relationship, and especially in teenage. So when you enter in your early 20s or your adulthood, your relationship with your parents strengthen in, your relationship with your siblings strengthen, your relationship with your friends who have been your friends for the past like five 5 or 10 years. If it's your school friends, then 15 years. So your relationship with people strengths in, and you have to keep that. So you start understanding, be you start to be more considerate about other people and how they think, and क्योंकि you want to keep up the relationship if it's a healthy relationship, of course. तो मुझे लगता है कि I learned a lot, and I think I have mastered the art of apologizing. I don't know if it's a good thing or not. Or I think I fall into the category where I apologize too much. No, I do. I think sometimes I apologize too much. कि उस दिन I was at market और मेरा दुपट्टा नीचे लग रहा था क्योंकि वो बहुत लंबा था, and someone told me कि दुपट्टा उठा लो, आपका दुपट्टा जमीन पे लग रहा है, and I was like, oh sorry. हालांकि I should have said thank you. I don't know मेरे मुंह से क्यों sorry निकला. तो मुझे लगता है कि I sometimes apologize too much for no reason at all, जैसे ये था. और समटाइम्स आई एम जस्ट टू गिल्ट इन गिल्ट कि मुझे लगता है कि ओ कैसे मैं अपोलोजाइज करूँ. और उसकी छोटी सी रीज़न ये है कि आई फॉरगॉट माई फ्रेंड्स बर्थडे, और फिर आई गॉट टू नो अबाउट अ वीक अर्लियर कि उसकी बर्थडे थी, और तब से मैं गिल्ट में, और मैं रोज़ सोचती हूँ मे बी आई शुड टेक्स्ट देम एंड टेल देम ओके आई एम सॉरी आई फॉरगॉट इट. लेकिन फिर मैं इतनी गिल्ट में होती हूँ कि मैं मैसेज नहीं कर पाती, व्हिच इज़ मेकिंग इट मच मोर वर्स. तो आई शुड प्रोबेबली जस्ट गो एंड मैसेज देम इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि आई फील वेरी बैड. और हालांकि आई एम नॉट अ बैड फ्रेंड, लेकिन आई हैव स्टार्टेड टू, मतलब कि आई गेट दिस. पहले मैं बहुत होती थी बर्थडे के बारे में, ओ इस बंदे की बर्थडे है, और कुछ लोगों की बर्थडे मुझे याद है, और ये बर्थडे मुझे याद थी, ठीक है ना. आई न्यू दिस पर्सन बर्थडे इज कमिंग एंड आई न्यू अ मंथ अर्लियर. लेकिन जब वो दिन आया तो मैं भूल गई, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हो रही है कि ना आई आई हैव स्टार्टेड टू फॉरगेट पीपल्स बर्थडे. और हालांकि इवन दो आई नो व्हाट्स द डेट, लेकिन जब वो दिन होता है तो आई डोंट acknowledge the fact कि it's this date and it's this person's birthday. और आई एम टू लेजी टू अपडेट माई गूगल कैलेंडर और उस पर मैं सबकी बर्थडेज अपडेट करूँ. तो इस वजह से, और स्नैपचैट
कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता, फेसबुक नहीं देता, तो खैर आई फॉरगॉट दिस बर्थडे एंड और अब मैं कर नहीं रही, मतलब आई शुड जस्ट गो एंड अपोलोजाइज, व्हाट वुड दैट पर्सन से। लेकिन मैं इतनी गिल्ट में हूँ तो मुझे लगता है आई फॉल इन बिटवीन द कैटेगरी के समटाइम्स आई मीन टू मच गिल्ट कि आई डोंट अपोलोजाइज, और समटाइम्स I apologize too much. लेकिन either ways I do have a realization कि oh I did wrong, which is something that I wanted to talk about कि I think कि when you are at fault, when you know कि oh something from my side, मतलब कि ये पूरा उस बंदे का गलती नहीं है। Firstly I think if you're in university, ठीक है ना, और if it's your मतलब कि if it's something with your friends, तो I think कि there's a 90% chance कि दोनों तरफ से गलती हो। And I do believe कि there's this वेरी फेमस पिक्चर यू हैव सीन के बंदा एक बंदा इस तरफ खड़ा है और एक बंदा उस तरफ खड़ा है, और एक बंदा बोल रहा है कि ओ ये 9 है और एक बंदा बोल रहा है ओ ये 6 है। आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जिसमें आप एक बंदे के परस्पेक्टिव से बात सुनो तो आपको लगता है कि वो सही है, और दूसरे बंदे के परस्पेक्टिव से बात सुनो तो आपको लगता है वो सही है, क्योंकि या तो दोनों सही होते हैं या दोनों गलत होते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी की गलती होती है। एंड 95% आई जस्ट मतलब के increased 5%, लेकिन आई थिंक के more than 90% of the situation there's both sides are at fault। ऐसा बहुत कम होगा कि एक इंसान की पूरी गलती होगी, और आई थिंक कि जब एक इंसान की पूरी गलती हो और वो उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, तो आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी रीजन टू नॉट कट दैट पर्सन आउट। ठीक है। um, और वो सिचुएशन मुझे लगता है कि वील डिस्कस थोड़ी देर बाद। लेकिन आई थिंक कि हमेशा जो है ना, या कभी कभी जो है आपकी गलती कहीं ना कहीं होती है, एंड आई थिंक कि नो रिफ्लेक्शन, ये मैंने पहले भी बात की हुई है, नो रिफ्लेक्शन इज बेटर देन सेल्फ रिफ्लेक्शन। कोई आपको आके वो बात नहीं बता सकता जो आप खुद बता सकते हो, कोई आपको इतनी अच्छी वो रियलाइजेशन दे नहीं सकता। या कभी कभी आप कोई आपको बता रहा होगा ना आप गलत हो, तो आपको चिड़ चिड़ चढ़ेगी, या आप उस बंदे से बात करना छोड़ दोगे क्योंकि तुम क्यों मुझे गलत कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले मतलब कि दिस सेंस कि ओ आई डिड रॉन्ग, और मैंने इस सिचुएशन में या जो भी चीज़ हुई, बेशक वो मैंने स्टार्ट की, बेशक वो अगले इंसान ने स्टार्ट की, मैंने उसका इस तरह रिएक्शन दिया जो कि सही नहीं था, मतलब कि दिस कुड हैव बीन डन बेटर ऑन माय साइड। सबसे पहले यू हैव टू एक्नॉलेज कि वेयर यू गॉट रॉन्ग एंड व्हाट वाज द रीजन। आपको बैठ के सब कुछ सोचना पड़ता है कि ओ मे बी दिस पर्सन डिड दैट, मे बी दे लाइड टू मी, और उसके रिवेंज में मैंने भी एक बहुत बुरा काम कर दिया, और लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये फील हुआ। और आई थिंक कि यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि वाई यू डिड दैट and you were wrong and you shouldn't have done that। और obviously there are some things कि आपको कि ओ उस इंसान ने, obviously you can always justify yourself कि ओ उस इंसान ने ज़्यादा गलती की, मैंने ज़्यादा गलती की। लेकिन when you are trying to reconcile with someone तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। You have always have to acknowledge your part before someone else tells you या अदर पर्सन टेल्स यू कि हे यू डिड रॉन्ग, और फिर आपको जाके रियलाइज हो कि ओ हाँ मैं तो गलत थी, मैं तो सोच रही थी मैं सही हूँ। मुझे लगता है कि आपको खुद एक्नॉलेज सबसे पहले करना पड़ेगा कि वेयर आई डिड रॉन्ग, और अगर आपको नहीं हो रहा तो मे बी गो थ्रू द होल सिचुएशन बाय योरसेल्फ, और मे बी एक्सप्लेन इट टू समवन हु इज क्लोज टू यू, जिस बंदे से लड़ाई नहीं हुई। और मतलब कि ऑब्वियसली उससे तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी बात कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए दूसरे इंसान को कन्फ्रंट करने से पहले, या फिर उससे अपनी चीज़ों के बारे में वोकल होने से पहले पहले आपको ये देखना होगा कि ओ मेरी गलती कहाँ थी। और अगर आप चाहते हो कि कोई और भी आपसे आके अपोलोजाइज करे और किसी ने आपका दिल भी दुखाया है, तो आपको सबसे पहले खुद गो थ्रू करना पड़ेगा उस चीज़ से कि यार मैंने तो कहीं गलती नहीं कर दी, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोल दिया जो कि बहुत हार्श था एंड दैट मेड द सिचुएशन मोर मोर वर्स, या मैंने क्या ऐसा किया कि अगला बंदा नाराज हो गया मुझसे। ठीक है। तो आई थिंक, और इट्स ऑलवेज द लिटिल थिंग्स, इट्स और मुझे लगता है कि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हो ना तो आपको रियलाइज नहीं होता कि ओ मे बी दैट कुड हर्ट द अदर पर्सन। तो इस मामले में जब फिर आप एक्नॉलेज भी नहीं ना करते इस चीज़ को, दैट मेक्स द थिंग वर्स के मुझे तो नहीं पता, वो अब इंसान एवं ही मुंह बना के बैठा हुआ है, मतलब कि आके मुझसे बात करे। तो आपको पहले
देखना होगा कि यार मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर दी जिसकी वजह से जो है वो इंसान ऐसे है, या फिर अगर मेरा और उसका आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उसमें मैंने क्या ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से अब हम वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड आई वांट टू मतलब के sort this out. Or if you can't figure out, then you can ask your friend always ke hey where I was wrong, the third person, मतलब not the friend directly, क्योंकि again I think that लेकिन you have जो जिस भी बंदे से आप वो मतलब कि आप वो चीज़ डिस्कस कर रहे हो ताकि वो आपको रियलाइज कराए कि oh maybe you were wrong in this situation. Sometimes maybe you can tell to someone who was not present there, maybe your parents or your siblings or some or your other friend. लेकिन मुझे लगता है कि they would only see your perspective and you have to be really neutral and tell the situation in a way कि आप अच्छी तरह से उसको narrate करो, क्योंकि हम हर किसी का अलग point of view होता है. तो maybe you will miss the part where you were wrong if you are not able to acknowledge where you were wrong. तो maybe the person who is present there, लेकिन obviously बीच में snakes भी बहुत लोग होते हैं और आप हर किसी को trust नहीं कर सकते. और मैं I would actually not prefer कि बीच में जो थर्ड पर्सन था अगर वो इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या यू थिंक दैट मे बी वो मसला कर देंगे और आपको पता लग जाता है कि ओ अगर मैं इससे अभी बात कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में मे बी शी विल ट्विस्ट माई वर्ड्स इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी कि यार हाँ तुम यहाँ यहाँ गलत थी और तुम्हें जाके उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, और मे बी आई ट्राई टू सेट यू गाइज अप नॉट सेट यू गाइज अप, आई ट्राई टू लाइक री मतलब के सेट यू गाइस अप नहीं, आई मुझे मुझे वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन आई ट्राई के टू बी अ ब्रिज बिटवीन यू गाइस. और बट ऑल्सो आई लेट यू गाइस हैव दैट स्पेस टू हैव योर पर्सनल कॉन्वर्सेशन. लेकिन मत मैं उस बंदे को कन्वे कर दूंगी कि ओ दे वांट टू टॉक टू यू, और मे बी आई कैन बी अ विटनेस और से कि हाँ तुम्हारी यहाँ गलती थी तुम्हारी यहाँ गलती थी, और फिर आप दोनों आपस में अपोलोजाइज कर लो और फिर मतलब एवरीथिंग्स फाइन. लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो इतनी मेहनत करें. समटाइम्स the person would hear whatever you are saying or whatever you're venting, and instead of telling you कि यार आप हाँ मतलब कि whatever you are saying is so valid but this is where you got wrong, और अगले बंदे को भी यही चीज बताएं कि हाँ तुम जो भी कह रहे हो वो सही है लेकिन दिस इज वेयर यू गॉट रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे वुड लिसन टू द पर्सनस वेंट कि अगर मैं मेरा किसी से दिल दुखा हुआ है या मेरी किसी से बात बिगड़ी हुई है, मैं एक बंदे से पूरा दुखड़े अपने कर लूं और वो बंदा सुने और कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो तुम्हारी तो बिल्कुल गलती ही नहीं थी, उस बंदे की गलती थी. और फिर मैं उस बंदे के और वो बंदा उस बंदे के पास जाए और उस बंदे को कहे कि तुम्हें पता है रबिया तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी. तो ऐसे भी लोग हैं और हैं. तो मुझे नहीं लगता कि तो इट्स ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्विंग समवन, लेकिन आपको पता लग जाता है कि कौन सा इंसान मतलब कि आफ्टर अ वाइल यू वुड नो अ पर्सन जो कि और तीरी लगाएगा या फिर वो पर्सन जो सुलह कराएगा, और दैट वुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यू बोथ. तो इफ देयर इज समवन ट्रस्टवर्दी जो कि आपको पता है कि एक दिल का अच्छा इंसान है, आपको अपनी और मुझे लगता है आपको ऐसे लोगों से ना बहुत करीब रहना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताएं और आराम से बताएं. मुझे लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ टोन एंड देयर इज ऑलवेज अ वे टू टेल समवन कि यार यू आर रॉन्ग विद दिस, हे आई थिंक दैट दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग. जरूरी नहीं है कि आप जाके उस बंदे से बिगाड़ दो, क्योंकि यू आर ऑलवेज अगर आप थर्ड पर्सन हो ना और आपके दो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स लड़ रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू पिक अ साइड और एक बंदे से कम बात करना शुरू कर दो एक बंदे के साथ ज्यादा हो जाओ, तो मुझे लगता है कि यू कैन ऑलवेज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दोज टू. और आप इंस्टेड ऑफ मतलब के सेइंग यू वर रॉन्ग और तुमने ये किया एंड आई वो डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू कैन मुझे लगता है कि इन आप एक इंसान से बिगाड़े बगैर उस इंसान को आराम से बता सकते हो. उसकी पहले सुनो उसकी पूरी सिचुएशन और फिर उसको बताओ कि बट आई थिंक कि हाँ तुम जो भी कह रही हो वो वैलिड है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन आई थिंक दिस इज वेयर यू वेंट रॉन्ग, दिस इज वेयर तुमने ज्यादती कर दी तुमने ज्यादा बोल दिया तुमने गलत बोला, एंड आई थिंक दैट यू शुड अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड आई डोंट थिंक दैट यू शुड वेट फॉर अदर पर्सन टू कम एंड अपोलोजाइज टू यू. अगर गलती 50-50 है या इवन 60-40 भी है, ठीक है, इफ यू वांट टू रिकनसाइल आई थिंक कि अगर आपकी इतनी किसी से क्लोज दोस्ती है ना,
तो आप कर लो। और मुझे लगता है कि अगर आपने रिकनसाइल करना है या नहीं करना, यू शुड ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर योर पार्ट। आपने उस बंदे से आगे ताल्लुक नहीं भी ना रखना कि नहीं यार बहुत हो गया, बहुत मतलब कि वी कुड नेवर बी फ्रेंड्स लाइक दैट, या बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सिचुएशन खराब हो गई है, फिर भी आई थिंक कि आफ्टर अ वाइल यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर पार्ट के ठीक है तुम ना मतलब के दोस्ती रखो। एंड आई थिंक देयर इज अ वे of conveying that hey maybe we couldn't be friends like that anymore। मतलब कि don't say that at first, लेकिन say कि hey I just want to apologize for my part, मुझे लगता है कि मेरी ये गलती थी, यहाँ यहाँ मेरी गलती थी, be vocal about it। कि ये मत कहो कि oh my god I'm so sorry और let's get back together। um, अगर आपको लगता है कि उस इंसान की भी गलती थी विच दे शुड एक्नॉलेज, तो जस्ट से कि दिस इज मतलब कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, या दिस इज वाज रॉन्ग ऑन माय साइड, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि उसने भी गलती की है। और इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू वांट टू रियली रिकनसाइल, क्योंकि माय मॉम ऑलवेज टेल्स मी, और मैंने ये बात अपनी मम्मा से ही सीखी है, कि जहाँ पे ताल्लुक रखना होता है ना वहाँ पे फिर यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू टेल कि दिस इज द थिंग दैट हर्टेड यू। अगर आपने उस इंसान से ताल्लुक रखना है, अगर आपने एक इंसान से ताल्लुक नहीं रखना, और तो फिर मुझे लगता है कि अगर उस इंसान की गलती है तो फिर, और वो आपसे अपोलोजाइज नहीं कर रहा, विच इज द सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, आ, तो फिर यू कैन लेट इट गो। या अगर आपने उस इंसान से ताल्लुक रखना है, तो मतलब कि एक होता है कि यू आर डन विद समवन, तो मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में कि यू शुड गो एंड आस्क या एक्सपेक्ट कि यार वो आके मुझसे अपोलोजाइज करेंगे। अगर आपने किसी से ताल्लुक रखना है, यू डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन इज प्रेशियस टू यू, और उस पर्सन ने आपका माजी में बहुत साथ दिया हुआ, और आप नहीं चाहते कि वो इंसान आपकी जिंदगी से जाए। पहली बात तो यह है कि लड़ाई, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एक बार जब बीच में लड़ाई हो जाए तो फिर से वैसा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता। uh, sometimes, yeah, most of the time it makes the relationship even stronger, it makes the friendship stronger, it makes whatever relationship you're sharing with that person stronger। कि वो हमारे दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, लेकिन वी वर स्ट्रांग इनफ, या आर फ्रेंडशिप या वट एवर रिलेशन वी वर शेयरिंग was strong enough कि we apologized on our behalf and we let that thing go and we move forward that together। और it always makes your relationship even stronger। और जब भी आप किसी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डुओ को देखेंगे, या किसी के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो दे वुड ऑलवेज हैव स्टोरीज टू शेयर कि हमारी पास में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं लेकिन नाउ वी आर स्ट्रॉन्गर, और नाउ यू लाफ ऑफ ऑन दैट। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन। मतलब कि अगर आपके पास एक लड़ाई हो गई है तो वी आर डन, वी कुड नेवर हैव द सेम रिलेशनशिप अगेन, क्योंकि दैट वुड मेक द रिलेशनशिप ओनली मोर स्ट्रोंगर। बट दैट डज नॉट मीन कि हाँ लड़ो इंटेंशनली ताकि रिलेशनशिप स्ट्रोंगर हो। तो वेयर वर वी, हाँ, तो आपने जहाँ पे ताल्लुक रखना है वहां पे यू हैव टू टेल दैट पर्सन कि दिस इज वेयर आई गॉट हर्टेड, दिस इज वेयर मतलब कि हो ओ वी हैड दिस आर्ग्यूमेंट, or we had this misunderstanding maybe, or whatever, maybe it's not misunderstanding, you both understand what you did। तो और अगला बंदा आपसे बात नहीं कर रहा और आपको उस बंदे से ताल्लुक रखना है, तो आपको कि हे दिस इज, आई थिंक के this is where I did wrong, and these are the things that hurted me। I understand, maybe validate them a bit के ओ मतलब कि I understand कि you were in this situation, लेकिन you shouldn't be saying that to other person, whatever situation you're in, no one deserves मतलब कि to hear that, yeah, this is where you hurted me, yeah, this is where you went wrong। और आराम से मतलब कि I think there's always a peaceful way to convey your feeling, not a peaceful like polite way to convey what you want to say। एंड उससे और लोग उससे ज़्यादा अच्छा समझ जाते हैं, तो जस्ट से देम इट इन द मोस्ट पोलाइटेस्ट वे एवर, कि अगला बंदा भी कहे कि ओके मतलब कि ये बंदा इतना बड़ा हो के मेरे पास पहले आ रहा है और अपोलोजाइज कर रहा है, तो मुझे भी आगे से जो है वो अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा आगे से अपनी गलती नहीं मान रहा तो डोंट इवन थिंक ट्वाइस, नो, थिंक ट्वाइस, लेकिन फिर उसके बाद आपको कोई अपनी तरफ से जो है वो
और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ओ मैंने एक्नॉलेज कर ली अपनी मिस्टेक्स, मैं अपोलोजाइज़ भी करूँ, लेकिन अगला बंदा जब मैं उसको बता मतलब कि पहले वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा था अपनी मिस्टेक, या उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि उसने कहाँ मिस्टेक की है, और अब मैंने जब अपना कर दिया और उसको बता दिया है कि तुम्हारी ये बात मुझे हर्ट की है, तो भी उस बंदे को रियलाइज़ नहीं हो रहा, तो डोंट बी अफ्रेड टू कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। कि इफ दे डोंट इवन केयर कि यू आर हर्टेड बाय देयर वर्ड्स, तो या फिर देयर एक्शंस, और उन्होंने आपकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली है लेकिन दे आर सो डम कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट दे डिड, तो कट देम ऑफ इफ दे डोंट केयर। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई फेल्ट के ओ आई एम, मतलब कि मेरी गलती नहीं है और एवी मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ, तो व्हाट वुड आई डू ऑनेस्टली, आई वुड मैं चुप हो जाती थी। समटाइम्स यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट कि दैट हर्टेड मी, स्पेशली व्हेन आपकी अपनी भी गलती हो, क्योंकि आपको अपनी गलती अगर एक्नॉलेज कर रहे हो तो फिर आप, और पार्शली इट्स योर फॉल्ट, पार्शली इट्स समवन एल्स फॉल्ट, तो फिर आप अगले को भी बता सकते हो कि ओ आई डिड दैट बिकॉज दिस थिंग हर्टेड मी। तो लेकिन अगर एक चीज में आपकी गलती है ही नहीं, आपका कसूर है ही नहीं, और अगला बंदा वाज अननेसेसरी रूड टू यू, दे सेड यू समथिंग और दे डिड समथिंग मे बी अननोइंगली, या फिर इन द हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट, और मे बी दे वर गोइंग थ्रू इट, कि जिससे आपको दुख हुआ हो और आपको कि ओ मैं अब इनको कैसे बताऊं कि यार मेरा दिल दुख है, तो मे बी चुप हो जाओ। क्योंकि मे दिस वर्क्स फॉर मी, दिस थिंग वर्क्स फॉर मी। अगर आपको है तो आप चुप हो जाओ, उस इंसान से ना बात करो। मेरा तो ये मतलब कि अगर आप एक बार, मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ, तो देयर इज दिस वन थिंग व्हेन माय फ्रेंड ब्लास्टेड ऑन मी फॉर नो रीजन एट ऑल, एंड शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो एंड ऑब्वियसली मुझे लगा कि यार क्यों, मतलब इट वाजंट माय फॉल्ट, तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई गॉट होम अर्लियर, मैं उसी वक्त घर चली गई। और फिर दैट पर्सन कॉल्ड मी एंड सेड व्हाई यू गॉट होम, मतलब कि व्हाई यू लेफ्ट, और मैंने कहा आई वाज, और मैं इतनी डम्बो हूँ। आई डोंट थिंक इट वाज डम बिहेवियर, लेकिन मुझे जब उस बंदे की कॉल आई है तभी मुझे बंदी की जब मुझे उस बंदी की कॉल आई है तभी मुझे लगता है, मुझे नहीं पता इफ इट्स इन माय फ्रेंडशिप और व्हाट, लेकिन द गर्ल्स आर मोर लाइक कंसिडरिंग, और वो ज्यादा जल्दी अपोलोजाइज करती हैं, और लड़के थोड़ा लेट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन खैर अच्छा, तो फिर माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड सेड, और मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि मे बी शी रियलाइज्ड, और शी सेड आई एम सो सॉरी आई ब्लास्टेड ऑन यू। तो मुझे लगता है कि दैट्स अ गुड वे ऑन कन्वेइंग कि आप थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करो, और मेरे जैसा बंदा जो हर वक्त चहकता रहता है और थोड़ा सा आप चुप रहोगे, थोड़ा सा 2-3 घंटे, तो अगर अगले बंदे को आपकी परवाह होगी तो वो देखेगा कि यार मेरा ये दोस्त चुप है, और अगर उनको अकल हुई तो उनको रियलाइज हो जाएगा क्या क्या उनने गलती की है, वरना दे आस्क यू, एंड व्हेन दे आस्क यू कि हे व्हाट्स द मैटर, टेल देम कि ओ दिस थिंग हर्टेड मी। खैर, और आई डोंट नो कि यू शुड ट्रस्ट इन टेलिंग दैट टू समवन एल्स, क्योंकि मुझे नहीं अगर आपका उस बंदे से इतना क्लोज रिलेशनशिप है ना जिसने आपका दिल दुखाया है, तो मुझे लगता है इट्स ऑलवेज अ रिस्क टू टेल समवन एल्स कि ओ दिस पर्सन डिड समथिंग दैट हर्टेड मी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे से वो बंदा और लगाएगा, लगाई बुझाई करेगा, या फिर दे एक्चुअली ट्राई टू सॉर्ट आउट द मैटर। तो इट्स ऑलवेज अ रिस्क, और आई ऑलवेज कंसिडर कि अगर आप खुद उस मैटर को डील कर सकते हो ना, तो अगले बंदे को इन्वॉल्व ना करो। द रिलेशनशिप यू शेयर विद सर्टेन पर्सन इज पर्सनली योर्स इन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, इवन इफ इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, लेकिन आपका हर इंसान से अलग रिलेशनशिप है। तो अगर आप वो खुद, इफ यू विल टेक द मैटर्स इन योर हैंड्स एंड मतलब के, और मैंने आई एक्सप्लेन डिफरेंट सिनेरियोज हाउ यू शुड रिएक्ट ऑन दैट, तो मे बी इट वुड बी मोर beautiful, not beautiful, and it would make your friendship even stronger if you get out of this, or if it's between you two only। अगर थर्ड पर्सन होगा तो फिर मुझे लगता है कि, और वो थर्ड पर्सन जो है वो, क्योंकि देर इज एवरी टाइप ऑफ पर्सन, तो अगर आप खुद थर्ड पर्सन हो तो आई कैन मतलब कि ऑब्वियसली एडवाइस यू के मे बी ट्राई टू टेल द अदर पर्सन कि हे हाँ मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी है और मुझे लगता है तुम यहाँ गलत हो, और मतलब कि आई अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग थ्रू, दिस इज दिस दिस दीज थिंग्स आर वेयर यू आर राइट,
और लेकिन दिस इज द थिंग दैट यू डिड रॉन्ग एंड आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज फॉर दैट। और अगले बंदे से भी आप बात करो, आपस में उनकी सुलह कराओ, गिव देम टाइम, वॉक अवे। इट्स ओके, यू डोंट नीड टू बी थैंक के ओ थैंक यू तुमने हमारी सुलह कराई है। यू डोंट नीड टू बी मतलब के सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, यू विल फील गुड फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आप कोई इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा, या फिर आप उस चीज में पढ़ो ही ना कि ओ आई डोंट वांट टू बी स्ट्रेस्ड आउट, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन और वो अगर वो इतने मतलब के दिस इज अप टू यू, ठीक है। लेकिन आई पर्सनली वुड बी समवन हु वुड ट्राई टू रिकनसाइल, और मे बी अगर उस दो इंसानों का रोज का है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे भी लोग होते हैं कि वो हर हफ्ते उनकी लड़ाई हो जाती है, हर बार कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों की गलती होती है, दोनों ड्रामा क्वीन होते हैं, तो आप कहते हो ओ आई एम आउट। जब एक बार होता है तो ऑब्वियसली बंदा कर सकता है, दो बार होता है कर सकता है, लेकिन इफ दैट थिंग्स गेट्स रिपेटिटिव, तो मतलब कि प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड प्रोटेक्ट योर पीस, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट योर ड्यूटी कि किसी और का बर्डन आप उठाओ, सुनो, और फिर उनको एडवाइस करो, और फिर दूसरे इंसान को एडवाइस करो, फिर उनकी सुलह कराओ। आपको इस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे। और इफ स्पेशली इफ द थिंग इज लाइक रोज का। लेकिन अगर इफ द फ्रेंडशिप बिटवीन दोज टू पीपल आर मीनिंगफुल, और आपके लिए उन दोनों की दोस्ती बड़ी मीनिंगफुल है, और आप एक पूरा ग्रुप हो, तो फिर और वो एक ही बार हुआ है, तो फिर ट्राई टू रिकनसाइल इट, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट वांट कि आपके दो अच्छे दोस्त आपस में लड़े। तो देयर इज डिफरेंट सिनेरियो, और आई होप यू गेट इट व्हाट आई मीन। or I have completely lost के where I what I was saying. लेकिन maybe I think कि I completed that, and whatever I said I put a closure to that. The next thing is कि एक इंसान बोलता है कि यार why I should be apologizing, क्यों मैं apologize करूं, मैं मतलब या मुझसे apologize नहीं होता। और ऐसे ही said कि no reflection is better than self reflection. What happens with me is that कि अगर मेरी गलती है ना, I will get anxiety, मुझे anxiety होती है। और मुझे अगर मुझे पता है ना कि ये situation थी और यहाँ मैं गलत थी, मैं कभी भी मुझे सुकून नहीं मिल सकता जब तक मैं उस चीज के बारे में अगले बंदे से कन्फेस ना कर दूं कि यार, या फिर मैं वोकल ना हो जाऊं, या फिर मैं अपोलोजाइज ना कर लूं। अगर मेरा कसूर है तो मुझे आई वुड नेवर get peace, and I think that works for everyone. I have seen so many people जो कि 2 साल बाद, 3 साल बाद एक चीज के बारे में किसी इंसान से अपोलोजाइज कर रहे होंगे, क्योंकि वो चीज अभी भी उनके दिमाग में चल रही होगी। ओ दे वुड बी हैप्पी, दे वुड बी डूइंग देयर नॉर्मल स्टफ, लेकिन उनके जहन में चल रहा होगा कि यार यहाँ मैं ज्यादती कर दी थी। और वो इतने अरसे बाद उस चीज को के बाद उस चीज के बारे में अपोलोजाइज कर रहे होंगे उस इंसान से। तो आई थिंक के आप अगर why you should be apologizing is that, या why should be accepting this mistake is that, is not that कि is not just that कि ओ मुझे जो है वो अपना उस बंदे से रिलेशनशिप ठीक करना है, और अगर आपको एक इंसान की परवाह नहीं, आपको अपना रिलेशनशिप उस इंसान से नहीं ठीक करना, तो आपको कि अच्छा मैं क्यों अपोलोजाइज करूँ, ये बंदा तो मेरी जिंदगी में अब है भी नहीं। मुझे लगता है आपको फिर भी अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि दैट वुड लीव यू, मतलब कि दैट वुड लीव एंग्जाइटी इन यू, एंड दैट वुड लीव यू इन अ बैड सिचुएशन, और आपके दिल में वो बात हमेशा रहेगी। और इफ यू रियलाइज के व्हाट हैव हैपेंड, आई नो कि देयर सम पीपल जो कि गलत कर देते हैं और उनको रियलाइज भी नहीं होता, एंड दे कीप कंटिन्यू लिविंग देयर बेस्ट लाइफ एवर, और उनका नहीं होता। और ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ कर देना चाहिए पर्सनली, लेकिन आई डोंट वांट यू टू बी दैट पर्सन। अगर आपका एक इंसान से कोई खराब हो रही है दोस्ती, या फिर पहले बहुत एक होता है कि नेचुरली आपकी किसी से दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन अगर एक इंसान से आप रोज मिल रहे हो, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल और इन योर होम, आप उस इंसान से रोज आपका कनेक्शन है, और एकदम से वो कनेक्शन खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि ओ व्हाट हैड हैपेंड। तो आई डोंट वांट यू टू बी दैट पर्सन जो कहे कि ओ आई डोंट केयर, आई वुड कंटिन्यू लिविंग माई लाइफ में एक नई दोस्त बना लेती हूँ और मैं उसके साथ फिरना शुरू हो जाती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। तो you always have to see where you were wrong, or what happens for me is that, and most of the people is that कि you don't get peace अगर आपने कोई गलती की हो। यू कांट लिव विद दैट, आई पर्सनली कांट लिव विद दैट। आई थिंक मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि ओ मुझसे नहीं मांगी जाती माफ़ी, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है और माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए,
और मतलब क्या, और कुछ लोग कहते हैं कि ओ मैं कभी माफी नहीं मांगती, मैं बस अगले बंदे से बात करना शुरू कर देती हूँ और ये मेरी माफी है। दैट्स नॉट द राइट वे, ओके, दैट्स नॉट गुड। अगला बंदा डिजर्व करता है कि आप उसको अपोलोजाइज करो अगर आपने कुछ गलत किया है या आपने फजूल में टेंट्रम्स थ्रो किए हैं उस इंसान पे। ये कोई बात नहीं होती कि ओ मैं नहीं अपोलोजाइज करूंगी, आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू यू। नो, यू शुड बी अपोलोजाइजिंग फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, क्योंकि अगले बंदे के दिल में वरना हमेशा बात रहेगी कि यार इसने मुझे अपोलोजाइज नहीं किया। बेशक अगर फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप वो अपना रिलेशनशिप रखते हैं, सब कुछ ठीक भी हो जाता है, लेकिन उनके पूरे जिंदगी दिल में बात रहेगी कि यार इस बंदे ने ये इस पॉइंट पे गलती की थी और इसने मुझसे अपोलोजाइज नहीं किया था। And if you are someone who cares about how someone feels about you and you want to be the best person for them, क्योंकि obviously आप जिस इंसान से करीब हैं आप उनके लिए अच्छे बनना चाहते हैं, आप उसके उनके बेहतरीन दोस्त बनना चाहते हैं, तो आप इस तरह नहीं बन सकते। और मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट हार्ड टू अपोलोजाइज विद समवन। और अगर आपको गिल्ट है तो फिर तो आपको कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ओ हमें कन्फ्रंट करने से डर लगता है या फिर कहने में डर लगता है। मुझे लगता है कि apologizing on text is very easy, or it could be very polite. You can say कि hey, I know we didn't talk a lot since the past few weeks or days, और मतलब कि unfortunately या फिर this happened between us or there is a misunderstanding, but I would our friendship is very precious to me, so I would like to reconcile with you and I would like to apologize you for this thing that I did। और अगर आपको लगता है कि ओ उस इंसान की भी गलती थी तो उसको कहो कि cause I was coming from this या this was that, के justify yourself or say कि oh this is where I got hurted, so maybe they can apologize in that too। I am not rephrasing the whole message in a good words, लेकिन I hope you guys get it। और फिर के को के ओ our friendship या whatever bond we share is very precious to me, तो I want to मतलब कि stay friends with you और I मतलब कि आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। और पहली बात तो ये कि डोंट लेट अप कपल वीक्स गो बाय, क्योंकि आप जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना खराब होता जाएगा। इट्स सो इजी कि जब आपने वो चीज़ गलती की आप इंस्टेंटली उसी वक्त या उसके थोड़े अरसे बाद उसी दिन या उसी रात को अपोलोजाइज कर लो और अगले दिन एवरीथिंग इज ऑल गुड। आप जितना उस चीज़ को टाइम देते जाओगे ना, जितना गैप आता जाएगा, जितना आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करोगे, उतना वो अनयूजुअल होता जाएगा आपके लिए अपोलोजाइज करना। तो डू अपोलोजाइज व्हेन यू थिंक इट्स योर फॉल्ट। व्हेन यू थिंक कि इट्स नॉट योर फॉल्ट और आपने किसी से बात भी की है वो कह रहे हैं आपकी नहीं गलती, तो फिर यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज। यू नीड टू जस्ट टेल द अदर पर्सन कि यार this is where you are wrong। if they care about you they'll apologize, if they won't care about you then you don't have to think twice to cut them off। और मैं again I'll say कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। if someone is not मत क्या I said that in friendship episode कि अगर एक इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो आपके साथ कैसा एटीट्यूड और बिहेवियर रख रहा है और आप चुप बैठे हो और आप उस इंसान को मूड दिखा रहे हो, मूड तो नहीं दिखा रहे लेकिन आप दिखा मतलब कि आप शो करा रहे हो कि ओ समथिंग्स रॉन्ग एंड दे डोंट केयर, दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट, so I don't think that there should be any reason to consider that person as a friend when they don't even care about the thing they did to you that hurted you, okay। और ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो अगर आप थोड़ा सा 1 घंटा भी बात नहीं करोगे ना, मतलब या जल्दी घर चले जाओगे या फिर आप थोड़ा सा मतलब कि आपका बिहेवियर चेंज होगा या आप थोड़ा सा चुप हो जाओगे, तो अगर कोई इंसान होगा दे रियलाइज दे हैव द गिल्ट। और अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे लग रहा है वो गिल्ट में है लेकिन वो मुझसे बात करना चाह रहा है लेकिन वो मुझसे अपोलोजाइज नहीं कर रहे एंड आई डिजर्व एन अपोलॉजी, आई वांट टू मतलब कि मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो रैप अप हो फिर हम आगे मूव करें, तो डोंट बी अफ्रेड टू जस्ट बी वोकल अबाउट इट एंड से कि यार अच्छा बिफोर वी गेट इनटू दिस इज द थिंग दैट हर्टेड मी, तो I accept an apology for that। Don't be afraid to say that। मतलब कि if you want an apology say that, and I don't think that you should there's मतलब कि द थिंग के ओ वो इंसान मुझसे अब नॉर्मली बात करना शुरू हो गया है, तो एवरीथिंग्स फाइन लेट्स मूव ऑन। नो, आई थिंक दैट इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस दैट होल मैटर और एंड रैप इट अप
एंड देन मूव फॉरवर्ड विद इट, मतलब कि कंक्लूड दैट। वरना कभी कभी हो सकता है कि अगर आपने उस चीज का क्लोजर नहीं ना है मिला, और आपने बस उस चीज को पीछे रख दिया और आप आगे मूव फॉरवर्ड हो गए हैं, समटाइम्स इट्स गुड। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर मे बी 2 महीने बाद वो बात दोबारा खुल के बाहर आ जाएगी कि ओ दिस इज, मतलब कि, और वो फिर और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर आपने उस चीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके उस चीज को खत्म कर दिया होगा तो फिर नहीं आ सकती। और दिस इज वेयर आई थिंक कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि दूसरे इंसान से आपने अपोलोजाइज करना है तो ऑलवेज डू। और मुझे लगता है कि it literally apologizing puts a weight off your shoulder, और people don't realize, people think it's hard to apologize और उनकी इज्जत में कमी आ जाती है। मुझे लगता है it's the easiest thing and it brings you so much peace। आपको लगता है कि आपका burden खत्म हो जाता है कि ओ आई apologized, मैंने अपना, मतलब कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। now it depends on that person कि वो आगे से क्या करता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा। जब एक सिचुएशन में आपका कसूर नहीं होता ना, आपको इस चीज़ की एंग्जाइटी भी नहीं होती या आपको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि अगला बंदा वो इंसान है जो ज्यादती कर रहा है। even staying on social media on Twitter, there's some takes, मतलब क्या है, maybe I, मतलब कि say something that is not, मतलब कि that doesn't go well with some people। तो I always what I do is that कि मैं हमेशा जो है वो अपोलोजाइज कर देती हूँ उस चीज़ के लिए, या मैं कोशिश करती हूँ मैं उस चीज़ के बारे में, मतलब कि अपोलोजाइज कर दूँ कि हे आई सेड दिस थिंग और आई थिंक दैट डिडंट सिट वेल विद पीपल, और आई रियलाइज कि मे बी इट कुड बी रॉन्ग फॉर सम पीपल, और दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आई अपोलोजाइज। और उसके बाद नो वन कैन पिक अप बोन टू यू। वरना आपको पता है कि अगर यू सेड समथिंग एंड यू डिडंट अपोलोजाइज फॉर दैट, तो इवन अगर आप उस चीज को डिलीट भी कर दोगे, लेकिन आप हो सकता है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद वो, मतलब कि आप कुछ को, मतलब कि यू आर बीइंग वोकल अबाउट समथिंग एल्स एंड समवन पुट्स अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड से दिस यू that happens। So I think that there's always, मतलब कि you should always apologize। And on that note, I would also want to apologize for something। so I don't know, but okay. So I was in first semester in my university, or there was this, और तब 2018 था and I was 18 years old, so I didn't, the person I was that time is not the person I am today, and there's a lot of things that have changed in within myself and within the things, मतलब कि within the way I take things and the way I have a stance on things, and it would keep changing। I mean, that's life, to live means to constantly shift colors। तो obviously आप जिस भी सिचुएशन में होते हो आप वक्त के साथ साथ सीखते हो और उस हिसाब से आपका ब्रेन डेवलप होता है। लेकिन खैर, आई वॉज 18 years old, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट सेमेस्टर, देर वॉज दिस यूट्यूबर हु केम टू आवर कैंपस एंड ही आस्क्ड me and my 2 other friends कि hey can I take an interview of you। we were like sure। मुझे तो बहुत शौक था कैमरा के आगे इंटरव्यू देने का, अभी भी है। तो खैर, दे आस्क्ड several questions from us and there was this question which was about this woman, वो movement, और मैंने उसके बारे में बहुत बुरा रिस्पॉन्ड किया था क्योंकि उस वक्त मुझे कोई अकल नहीं थी। आई वॉजेंट दैट एजुकेटेड अबाउट थिंग्स। तो मैं वही कह रही थी जो कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों को कहता हुआ सुनती थी, विदाउट डूइंग any walking of my own or without even knowing anyone's situation, बस मतलब, and it was about me too movement। और now I am a feminist proper। और उस टाइम मुझे लगता है कि क्योंकि the औरत march just started और लोग जो हैं वो, मतलब कि इतना उन्होंने पूरा feminist को गाली बना दिया था, जिसकी वजह से, मतलब, और obviously I was 18 years old which is not that, मतलब कि छोटी एज, लेकिन आई वाज अ टीनेज, ओके। लेकिन नाउ, मतलब कि इवन दो मी एंड माय ब्रदर समटाइम आर्ग्यू एंड पीपल थिंक दैट कॉलिंग मी, मतलब कि अब मुझे लोग कहते हैं कि ओह यू आर अ फेमिनिस्ट, और उनको लगता है कि वो मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन आई टेक इट एज अ प्राइड लाइक, हाँ। लेकिन उस टाइम मुझे अकल नहीं थी, तो आई सेड सम डम्बेस्ट थिंग एवर, और आई एक्सेप्टेड, आई अपोलोजाइज फॉर इट। और मुझे हमेशा, मुझे, मतलब कि मैं रोज सोचती हूँ, मतलब कि दैट्स द थिंग। और आई एम सो हैप्पी टू, मतलब कि फाइनली एक्नॉलेजिंग दैट। मैं रोज सोचती हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में ट्वीट करूँगी मे बी, क्योंकि नाउ व्हेन आई हैव अ पॉडकास्ट आई डोंट वांट कि मैं कुछ कहूँ और मुझे, मेरी कोई वीडियो को वो स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इट्स ऑन यूट्यूब,
और वो डाल के दिस इज व्हाट यू सेड लाइक 5 years ago। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन आई ऑलवेज डोंट ट्वीट अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वो ट्वीट करूंगी तो a lot of people would be like, oh, we want to see that video, we want to see what she said, and I want to like get that video out of the internet, और मैं नहीं चाहती कि वो कोई देखे। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर मैंने बोला ना तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, और इस वजह से मैं डर जाती हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज व्हेन यू आर एट सच, when you are on a platform, I don't have that much following अगर if it's giving that impression, लेकिन आप कुछ भी गलत कहो ना तो आपको ऊपर 50-60 कोट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आई डोंट वांट समवन टू मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड दैट वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन ट्विटर एंड से एट द ब्राउन गर्ल रैंट्स, और आगे मुझे सारे गालियां दे रहे हो। और मैं खुद उसके बारे में बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अच्छा एक चीज़ छुपी हुई है तो छुपी रहे, लेकिन दैट्स अ बैड मूव कि आप उस चीज़ के बारे में बोल नहीं रहे, क्योंकि इट वुड गेट हाईलाइटेड। लेकिन अगर एक बार, what I am saying, what I why I said all of this is because के अगर आप एक चीज़ को एक्नॉलेज कर दो, जैसे मैंने अभी एक्नॉलेज किया और मैंने अपोलोजाइज कर लिया पब्लिकली, और मे बी आई ट्वीट अबाउट इट टू, तो फिर नो वन कैन होल्ड अ बोन against you. I hope it's a correct phrase to use, लेकिन no one can do that क्योंकि you already apologize। और फिर आप वो जितना मर्जी उस चीज को घसीटते रहे, यू विल से बट आई ऑलरेडी अपोलोजाइज, आई एक्सेप्टेड, आई एक्नॉलेज इट। तो जब आप एक चीज के बारे में जो कि आपने गलती की है, आप उस चीज के बारे में अपोलोजाइज कर रहे हो, तो नो वन कैन से एनीथिंग अगेंस्ट ऑन यू, यू गेट आउट ऑफ इट। तो अगर वो उस चीज को घसीटी जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं, वो फिर उन पे है। लेकिन एक बार आप एक चीज के बारे में अपोलोजाइज सिंसियरली कर दो, तो फिर मुझे लगता है कि यू आर एट पीस, क्योंकि यू डिड रॉन्ग, यू अपोलोजाइज, यू एक्नॉलेज। अगला बंदा नहीं आपकी ले रहा अपोलॉजी, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने अपोलोजाइज कर दिया, आपको रियलाइजेशन है, तो अगर अब 4 साल बाद अगर वो चीज इंसान फिर से ले आएगा कि ओ यू सेड दैट, तो यू विल बी लाइक ओ बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और फिर आपको शो भी कराना, आप फिर वो चीज़ फिर से ना करो। ये नहीं है कि आप वो चीज़ करते रहो रिपीटेडली, तो फिर आप वो चीज़ ना करो, तो उनको भी पता लगे कि नो कि यू हैव चेंज। जैसे इन माय सिचुएशन आई हैव चेंज, माय कॉन्सेप्ट्स आर चेंज्ड, आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को पता है, और दे विल सी कि नाउ मतलब कि आई डोंट हैव द सेम कॉन्सेप्ट, so it would be foolish to have this 5-year-old proof for you of you for the thing that you have apologized। लेकिन आप apologize नहीं करते, तो आपको नहीं पता, अगर even if you get away with that thing, जैसे I got away with it, आपको नहीं पता इतने अरसे बाद वो चीज़ फिर से आ जाएगी। और अगर वो आती भी नहीं है, तो आपको अंदर से जैसे मतलब कि किसी ने मुझे, नो वन हेल्ड मी अकाउंटेबल, लेकिन मेरे अंदर गिल्ट है कि नहीं यार, आई सेड रॉन्ग। और मुझे लगता है कि तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि इट्स सो नॉट जस्ट फॉर द अदर पर्सन हु डिजर्व्स योर अपॉलॉजी, जिसने जिसको हर्ट हुआ आपकी वर्ड्स की वजह से, नॉट ओनली दे डिजर्व योर अपॉलॉजी, बट ऑल्सो अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिस्टेक वुड ब्रिंग यू पीस एंड वुड पुट अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, एंड इट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स फॉर योर के आपको एंग्जाइटी ना हो हर रोज रात के 3 बजे कि यार मैंने ये गलत किया था। और जितना जल्दी हो सके आप उस चीज़ के बारे में अपोलोजाइज करो, क्योंकि द मोर you wait, the more worse it gets for you to connect with that person। अगर एक बंदे से बंदे है, या फिर अगर आपने कुछ सोशल मीडिया पे किया हुआ है, या आपने कोई चीजें की हैं, जितना आप गुजारते जाओगे ना उतना हो जाएगा। और आई स्वेयर टू गॉड वंस यू विल अपोलोजाइज फॉर इट, यू विल फील लाइक कि बस मतलब कि यू विल फील सो गुड। और लोगों को लगता है कि ओ मैंने पहले माफी मांगी तो मैं छोटी पड़ गई, मतलब कि ऑब्वियसली पीपल हैव दिस इन देयर ईगो। बट मुझे लगता है कि ग्रोइंग अप आई रियलाइज्ड कि इफ यू apologize first, you're actually the bigger person, and you're actually the मतलब के the अच्छा वाला, not अच्छा वाला, basically the bigger person who had the strength to apologize and reconcile and मतलब कि start all of this। you will be the bigger person, you will be considered the bigger person। आपको कभी अपना आप छोटा नहीं फील होगा कि ओ मैंने क्यों अपोलोजाइज किया, क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल किल योर ईगो। यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू मतलब stop thinking the fact, और मतलब कि that goes very deep rooted। तो यू हैव टू किल दैट थिंग कि ओ मैं क्यों अपोलोजाइज करूं फर्स्ट।
मेरी गलती इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी है। अगर आपको उस इंसान से ताल्लुक़ रखना है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो बंदा रियलाइज़ नहीं कर रहा उसकी गलती कहाँ है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। अगर वो आगे से अपनी गलती एक्नॉलेज नहीं कर रहा या आपकी अपॉलॉजी नहीं ले रहा, देन दैट्स दैट पर्सन। यू वुड बी इन पीस कि ओ मैंने कर दिया जो मैंने करना था, या मैंने बता दिया जो मैंने करना था, अब अगला बंदा नहीं कर रहा या नहीं कर रहा, तो मे बी दे डोंट वांटेड मी एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है। अगर उनको आपकी परवाह होगी तो दे एक्सेप्ट इट एंड दे ट्राई टू रिकंसाइल विद यू बिकॉज मतलब फॉर दैट। तो आई होप दैट मेक्स सेंस। आई थिंक आई सेड ग्रेट थिंग्स। नो मतलब कि मुझे लगता है कि मैंने सही कहा है। और फॉर द पर्सन हु इज मतलब कि सेइंग दीज मतलब कि हु is saying मतलब कि doing the podcast and the words that are coming out of her mouth are the first things she said मतलब कि after waking up. So I think that's good and I hope मतलब कि you all मतलब कि understand what I'm trying to say कि कितना मुश्किल होता है ना जब आप उठते हो तो you आप सदमे में होते हो। मतलब कि घंटा 2 घंटा तो आप प्रोसेस करने की कोशिश में होते हो किसी से बात करने से पहले। और तो इस वजह से मुझे लगता है फॉर समवन हु जस्ट वोक अप, आई डिडंट जस्ट वोक अप, आई वोक अप एट लाइक 6 और इट्स 9 राइट नाउ। लेकिन खैर यू गेट इट और आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। लेकिन अच्छा, तो या तो आई वुड रियली रिकमेंड टू अपोलोजाइज और आई रियली वुड रिकमेंड टू नो योर वर्थ। और मैंने आपको बताया कि किन सिचुएशंस में आपको अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। रादर देन यू शुड टेल द पर्सन कि यार तुम यहाँ पे गलत हो, ठीक है ना, और मुझसे अपोलोजाइज करो, ऐसे नहीं कहना। लेकिन मतलब कि देयर इज ऑलवेज अ काइंड वे टू टेल समवन एंड पोलाइट वे टू टेल समवन समथिंग। इफ यू थिंक कि अगले बंदे की बहुत ज्यादा गलती है और आपकी माइनर सी गलती है, तो भी मुझे लगता है और अगला बंदा नहीं उस चीज को एक्नॉलेज कर रहा, नहीं रियलाइज कर रहा, और तो और आप के लिए वो चीज मतलब कि आप पहले तो यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट यू वांट, डू यू वांट टू मतलब कि रिकनेक्ट विद दैट पर्सन और डू यू डोंट वांट टू रिकनेक्ट विद दैट पर्सन। इफ यू डोंट वांट टू तो फिर आप छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि वो मैंने जो 10% भी जो मेरी गलती थी या 5% भी जो थी वो मेरी तरफ से गलत था, तो आप उस चीज़ के लिए एक छोटा सा मैसेज कर दो कि ओ आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बस इतना ठीक है। अगला बंदा देखे ना देखे, रिस्पॉन्ड करे ना करे, या अगर उन वो अपने पे करते हैं तो तुमको ठीक है। और if they want to be friends with you after that and you don't want to be with that, तो just tell them कि I just wanted to apologize क्योंकि I don't want any bad blood between us, but I don't think that I want to be friends with you anymore. Yeah, I don't think that we could be that friends. Or I think that happens naturally. I don't think कि आपको इतना सोचना पड़ेगा। You know when you want to be मतलब कि stay with that person, you know when you don't want to stay with that person. लेकिन आपको लगता है कि अगला बंदा इस मतलब कि एक बंदे ने आपके साथ बहुत कुछ किया and now they are repenting on it, तो it's on you कि if you want to stay with that person, if you don't want to stay with that person. If यू थिंक कि जो उन्होंने किया मतलब कि ओ ठीक है उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया, इट्स ऑन यू इफ यू वांट टू एक्सेप्ट देयर अपोलॉजी और नॉट। इट्स ऑन यू इफ यू मतलब अगर आप उनसे वापस ताल्लुक रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। एंड मुझे लगता है कि दैट्स अनदर टॉपिक, और क्योंकि दिस इज अबाउट यू अपोलोजाइजिंग। लेकिन आई थिंक कि यू वुड नो, आई डोंट थिंक कि आपको इतना सोचना पड़ेगा। और इफ़ यू मतलब कि आप कभी कभी एक इंसान का रोज का होता है, आपकी बस हो जाती है, आपको पता है कि अगर आप अभी कह दोगे कि हाँ ओके इट्स ओके, यू नो के ओ वो फिर 2 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ कर देंगे, तो मे बी इन दैट सिचुएशन इट्स बेटर टू कट ऑफ। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक इंसान से गलती हो गई है, ठीक है कुछ नहीं होता, बट यू मतलब कि यू कैन स्टिल बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन while you can मतलब कि maintain that distance and we'll मतलब कि have this topic maybe later कभी के how to मतलब कि maintain a distance with someone you are close with और आपको लग रहा है कि ओ वो toxic है या problematic है या मेरे लिए सही नहीं है या मेरे पे उनका bad influence है, तो आप बगैर फड्डा डाले बगैर रूड हुए कैसे उनसे आराम आराम से डिस्टेंस ले सकते हो, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन आई होप आई मतलब कि discussed all the situations। आई मुझे ना मतलब कि रिलेशनशिप भी डिस्कस करने थे कि किस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे लगता है कि विद पीपल इट चेंजेस टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद
पेरेंट्स, अगर आपकी किसी अपने अम्मा या अब्बा से किसी चीज़ पे हो गई है, तो उस पे मुझे लगता है कि डोंट एक्सपेक्ट और डोंट आस्क अपॉलोजी फॉर फ्रॉम देम। और उनमें मतलब कि आपने कुछ किया है तो apologize to them as soon as possible. And I'm gonna make a whole podcast on parents and children relationship, नहीं, how to build a healthy relationship with your parents, अगले से अगले Wednesday. तो I think maybe I could discuss more deeply in all of the situation, लेकिन with parents I would just straight away say कि आपने कोई गलती की है, आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, you should go and apologize, and you shouldn't tell या expect के वो आपसे आके apologize करेंगे. They deserve your apology, ठीक है ना? They raised you, तो उनके साथ अलग relationship है. तो you should go and, और you know कि your parents want the best for you, and they are the most forgiving पर्सन. मतलब कि पेरेंट्स तो डोंट इवन एक्सपेक्ट अपॉलॉजी. आपने बदतमीजी की, आप 2 घंटे बाद उनसे सही बात कर रहे हो, तो वो बेचारे कहते हो कि ठीक है. लेकिन अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है और मतलब कि मे बी यू दे शाउटेड ऑन यू या जो भी है, योर पेरेंट्स वुड नेवर मतलब के एवी डू समथिंग टू यू. मतलब कि मोस्टली इन मोस्ट सिचुएशन वो ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे अगर आपने आगे से रिबेलिएट नहीं किया. इज दिस द करेक्ट वर्ड, रिबेलिएट? लेकिन अगर आपने आगे से नहीं कुछ किया तो वो आपको एवं क्यों करेंगे. लेकिन अगर आपको मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो गई है और आप फिर, क्योंकि पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट के बाद आई थिंक यू गेट मोर एंजाइटी, और आई डोंट थिंक दैट इन पेरेंट्स सिचुएशन यू शुड expect or tell ke, oh, you were wrong there. I think they're different. I think that you should just straight away go and apologize और से कि आई वॉज रॉन्ग देयर. मे बी उसके बाद जब, क्योंकि मुझे लगता है एक लेवल की फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, जब आप 20+ के हो और आपका बिल मतलब कि अलग बॉन्ड है, तो यू कैन से कि ओ मे बी दीज वर द थिंग्स दैट hurted me, लेकिन I shouldn't have said that. लेकिन आप मतलब कि don't wait for your parents to come to you and talk to you और फिर आप उनसे करो, just go and apologize for them. With parents it's no, क्योंकि they want the best for you, they're sincere for you, they'll accept your apology, they love you selflessly. With friends they're always a 50-50 situation. मैं बोल क्यों नहीं पा रही. And there's always a मतलब के, और obviously they're toxic enough, if they're not good तो you can cut them off. लेकिन with parents they love you, and जो मतलब कि most of the time you'll grow up and you realize it was you being brat in that situation. So with parents I think that you should just go and apologize. They'll accept your apology, they'll cherish that, and they love you even more. So with parents it's a bit different. With siblings, now with siblings मुझे लगता है कि मोस्टली ये सिचुएशन होती है कि आपकी लड़ाई हो जाती है लेकिन आप अपोलोजाइज नहीं करते, और आप फिर जो है वो मतलब कि सब कुछ सही हो जाता है, और मतलब कि स्पेशली व्हेन यू आर मतलब कि लिविंग टुगेदर. लेकिन वंस यू मूव आउट और आपकी शादी हो गई है या वैसे ही आप अलग सिटीज में हो, तो देन आई थिंक दैट यू शुड मतलब कि प्रैक्टिस ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड. क्योंकि आप उनसे दूर हो, आपको नहीं पता वो किस सिचुएशन में है, आपको कुछ नहीं पता. अगर आर्ग्यूमेंट हो गया है तो यू शुड मतलब कि टेल देम, अपोलोजाइज टू देम एंड गेट दिस डन. मुझे लगता है कि विद सिबलिंग्स एंड विद क्लोज फ्रेंड्स इज द सेम सिचुएशन. जब आप स्पेशली व्हेन आर यू आर नॉट लिविंग विद योर सिबलिंग्स एनी मोर, और आप अपनी अपनी जिंदगी में हैं, तो मुझे लगता है कि तब मतलब ऑल द थिंग्स दैट आई मेंशन्ड अर्लियर आई थिंक दैट अप्लाई टू दैट. लेकिन इवन इफ यू आर लिविंग विद देम और आपने, क्योंकि अब आके अगर मेरी अपने बहन भाई से लड़ाई हो जाए और मुझे लगता है कि ओ मे बी आई डिड रॉन्ग देयर टू, मुझे लगता है विद सिबलिंग इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग. और मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव दैट रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग कि ओ उसने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, और आगे जाके हम सही हो गए और सही है बिल्कुल, हम आउटिंग पे जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स फाइन. विद सिबलिंग इट्स फाइन क्योंकि यू आर लिविंग टुगेदर बेसिकली, और यू स्टिल लव ईच अदर. विथ फ्रेंड्स इट्स डिफरेंट एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसमें फिर मतलब कि कंपटीशन है या और इतनी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, दैट मेक्स द होल थिंग more toxic. There are other people. With siblings आपके पेरेंट्स होते हैं साथ, आप लोग आपस में हो और they're your blood relation, तो उनके साथ मुझे लगता है it's a bit different unless you are living in different cities or living in different houses, और फिर misunderstanding हो गई है, फिर I think that you should apologize them and be vocal about it. लेकिन I think कि with siblings, क्योंकि मैं खुद भी कम ही apologize करती हूँ और I love them so much और I have so much fun with them,
तो आई कांट रियली हियर टेल पीपल, और मुझे लगता है आपका उनके साथ रिलेशनशिप और बॉन्ड है, इट्स मोस्टली नॉट, मतलब कि बहुत कोई माइनर लड़ाई होगी जिस पे आप बड़े होगे तो यू विल लाफ ऑफ ऑन दैट एंड टेल योर किड्स, मतलब इतना हंसते हंसते कि वो वी फॉट ऑन दैट थिंग, और अब आप मतलब कि इट बिकम्स अ मतलब कि फनी मेमोरी फॉर यू। तो आई थिंक के विद सिबलिंग्स इट्स ओके, लेकिन यू हैव टू सी, यू स्टिल हैव टू सी, मतलब कि अगर बहुत ही कोई मेजर लड़ाई हो गई है तो फिर यू हैव टू सी के कैसे, मतलब कि हाउ शुड आई डू दैट। समटाइम्स योर पेरेंट्स मतलब कि आपकी वही सुलह करा देते हैं, कभी आपके दो बहन भाइयों की हो तो आपको सुलह करानी पड़ती है, लेकिन विद सिबलिंग्स आई थिंक इट्स द हार्डेस्ट टू से, मतलब आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऑल ऑफ द लड़ाई इज अफेक्टिंग आवर रिलेशनशिप, और अब मतलब कि मेरी लड़ाई हो गई कि हमने एक हफ्ते से एक दूसरे से बात ही नहीं की और वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो मे बी देन यू शुड गो एंड बी वोकल अबाउट इट। लेकिन अगर वो लड़ाई हुई 4 घंटे बाद फिर से दोस्ती हो गई तो आई थिंक इट्स फाइन, और इट वुड मतलब कि इट्स मे बी नॉट दैट ऑफ अ बिग डील एंड यू विल बी लाफिंग ऑन दैट when you will grow up। तो it depends on the situation। then it's with close friends, जैसे close friends भी मुझे लगता है sibling तरह ही हैं। the thing is that कि if you know the person, you always know, so if the person you have this problem with is someone who took your side in the past, who supported you always, and you know कि this person would मतलब कि always supported me, they love me, और ये मेरे इतने क्लोज हैं, मतलब कि इवन विद क्लोज फ्रेंड्स और सिबलिंग दैट दिस हैपेंस, तो आई थिंक दैट इट इज नो हार्म टू गो एंड बी वोकल अबाउट इट, इवन इफ आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है। अगर वो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं जो आपके, आपको पता है इन्होंने मेरा इस सिचुएशन में साथ दिया, इस मुश्किल सिचुएशन में ये मेरे साथ थे, यहाँ थे वहाँ थे, देन यू शुड गो एंड मतलब कि ट्राई टू रिकनसाइल विद देम। अगर इवन इफ आपको लग रहा है कि उनकी गलती है, मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, if you have that much love for each other, तो I think you should be vocal about it। with initial friends मतलब कि आपके जो शुरू में बिल्कुल दोस्त बनते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए ना, तो मे बी इन दैट सिचुएशन sometimes you don't need to apologize and sometimes you need to cut them off, और स्पेशली अगर वो रोज रोज का है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनिशियल फ्रेंडशिप्स में इट्स हेल्दी कि आपका अभी पहला महीना है या दूसरा महीना है और लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है ना, तो मे बी दैट फ्रेंडशिप इज नॉट फॉर यू। और इवन अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो आप अपनी तरफ से बस थोड़ा सा अपॉलोजी कर दो, लेकिन कट देम ऑफ इफ यू थिंक के ओ इट्स नॉट गना टर्न आउट दैट वेल, या फिर इट्स नॉट गना मतलब के अभी तो हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है शुरू में आपका वो लेवल का बॉन्ड भी नहीं होता, आपने इतनी शेयरिंग भी नहीं की होती, और फिर भी ऐसा हो रहा है तो फिर मतलब क्या, आई थिंक यू नीड टू रीथिंक। नो आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर आपकी गलती है तो आप अपोलोजाइज ना करो, और आपको मेरे एक हफ्ते की दोस्ती या एक महीने की थी तो मैंने मतलब कि ठीक है, नहीं, अगर आपकी गलती है तो ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर देम, बट इफ इट द थिंग इज गेटिंग रिपेटेटिव तो डोंट बी शाई टू apologize for one final time and cut them off। और इस द apology is not that कि ओ आप छोटे बन गए हो और आप मतलब कि आपने रियलाइज कर दिए, इट्स बीइंग द बिगर पर्सन एंड सेइंग कि ओ apologize from me on that side, लेकिन आई डोंट वांट दैट friendship with you, or I can't don't think that मतलब कि I can have the same relationship with you I had। तो with initial friends um इट्स अ बिट मतलब कि ट्रिकी, नॉट ट्रिकी, लेकिन आई थिंक इट्स मतलब कि देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट मे बी दैट पर्सन जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है वो है ही टॉक्सिक एंड दे डोंट केयर अबाउट यू, एंड आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि वो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको पता लग जाता है कि दे डोंट केयर अबाउट यू एंड डोंट बी शाई टू कट देम ऑफ। इफ इट्स गेटिंग रिपेटेटिव तो भी डोंट बी शाई टू कट देम ऑफ। अगर आपको लगता है कि ओ बस ये एक बात था और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और या आपका रिलेशनशिप स्ट्रांगर हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब कि आपकी एक हफ्ता पहले पुरानी दोस्ती है या एक महीना पुरानी दोस्ती है और एक एक चीज़ आ गई है और आपको लगता है वो नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इनिशियल दोस्ती है, तो मे बी रिकनसाइल विद देम, लेकिन उनसे फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लेना शुरू कर दें कि आपको ओ दैट वाज नॉट द फ्रेंडशिप आई वांटेड, तो मे बी स्टार्ट टेकिंग डिस्टेंस और इट वुड बी फाइन। आई होप कुछ अर्से बाद कम हो जाएगा, फिर खाली सलाम दुआ पे बात रह जाएगी। नेवर मतलब कि मुझे लगता है कि कभी भी किसी से, मेरी जितनी भी दोस्तियां हैं ना, मेरी कभी भी कोई ड्रामेटिक
फ्रेंडशिप ब्रेकअप नहीं हुआ। बहुत से लोग थे जिनसे मैं पहले एक ज़माने में बहुत क्लोज थे, अब मैं उतना नहीं हूँ, बट इट ऑलवेज हैव टर्न्ड वेरी नेचुरली कि ओ मैं इस यूनिवर्सिटी में चलेगी, वो उस यूनिवर्सिटी में चलेगी, या हमारा कनेक्शन नहीं रहा, वी लॉस्ट कनेक्शन। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आई हेट दैट पर्सन और कोई बहुत मेजर ड्रामा हुआ है। और एंड आई नो कि अगर मैं अभी भी मतलब कि इफ आई मतलब बम्प इनटू देम इन सम पब्लिक प्लेस, तो ऑब्वियसली मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है या ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन मतलब कि ग्रीट देम एंड मीट देम। तो मुझे लगता है कि दैट्स द करेक्ट वे ऑफ मतलब कि फ्रेंडशिप्स एंडिंग, नॉट एंडिंग, लेकिन द फ्रेंडशिप स्टेज, लेकिन यू आर नॉट इन कांटेक्ट एनी मोर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यू टू कट समवन ऑफ यू हैड टू हैव अ मेजर ब्रेकअप, फ्रेंडशिप ब्रेकअप, और मेजर कोई ड्रामा और कन्फ्रंटेशन, और मतलब कि जिसमें आप बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हो विद देम। आप इजीली आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्टेंस ले सकते हो, और वो ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि अगर आप चलो 4 साल बाद मिल भी रहे हो तो देर इज़ नो ऑकवर्डनेस, यू कैन जस्ट से हे हाय क्या हुआ, मतलब कि यू कैन मे बी रिकनेक्ट इफ़ यू वांट टू, और या फिर वहीं तक बात रख सकते हैं। तो डोंट मतलब कि डू दैट कि आप किसी से ऑन द स्पॉट लड़ाई कर लो और फिर आप पूरी ज़िंदगी उनसे बात ना करो। और मुझे पर्सनली मतलब कि आई थिंक आई इट्स अ गुड थिंग कि ऑब्वियसली इट्स नेचुरल कि जो आपका आज शायद दोस्त है वो आपका पूरी ज़िंदगी दोस्त ना रहे, या फिर आप इतना क्लोज ना रहो। हाँ, तो ये मतलब कि दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स बेसिकली, कि आप उनसे इतना क्लोज ना रहो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो आपका दोस्त ही ना रहे वो अलग चीज़ है। और ऑब्वियसली मतलब कि अब बात नहीं होती इज मतलब देयर इज दिस फ्रेज, अब बात नहीं होती, मुझे लगता है कि इट्स हर्टफुल बट इट्स बेटर देन के आई इंटेंशनली हैड टू कट दैट पर्सन ऑफ, या हमारे दरमियान एक मेजर लड़ाई हो गई है। और अगर एक मेजर लड़ाई हो गई है तो अगेन आई थिंक कि और आपको लगता है कि वो बंदा नहीं रिकनसाइल करना चाहता, तो जस्ट अपोलोजाइज फॉर योर पार्ट एंड लीव इट टू देम एंड लीव इट टू अल्लाह। Or that's it for the episode. I hope I spoke well. I hope I said well. Or please let me know how you feel about it. Please subscribe to the podcast on whatever platform you're listening to. I'll see you guys next week with another topic which is about study. क्योंकि I think study season, exam season is here basically. So I really wanted to make an episode on that. So I would be uploading that. So make sure you're looking forward to that. Or thank you so much for listening to it. Make sure that you मतलब कि give me your feedback on this episode. I kind of feel कि maybe it could help, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंडशिप, my favorite podcast episode is my friendship one. तो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट, और उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड आई ऑलवेज लव hearing other person's review on my podcast episode, obviously. So if you like the episode, then मतलब कि please make sure to let me know that you liked it, क्योंकि that would really make my day. Like, and have a nice week. I'll meet you guys, or I'll see you guys, or you guys will listen to me next week. Or you can always connect to me on Twitter or Instagram, क्योंकि I am always active over there. And yeah, bye.